Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? Hope all are fit and fine at your home and be home, be safe. Okay. So, enjoyed your vacation? Yes, I think you enjoyed your vacation. And today onwards, we will do our video classes and online classes. Okay, so in the last class, what we have studied? We have studied about the chapter number 3, that is Northern Plains, the Great Northern Plains. In this chapter, we discussed about the great river basins, the Satluj Basin and Ganga Basin. Yes, you understood this, yes? And hard words also we had written in your FNB and the worksheet, day 1 worksheet also we had solved. So today onwards we will do our further discussion about Brahmaputra basin and the states in the northern plains. Before that we will do our activity and thought of the day. Okay. Yes, today's thought of the day is Mother is the true queen of every home. Yes, it is very important one, very truthful and meaningful thought. So you have to understand about our mother. So she is the queen of every home. हमारा जो मदर होते हैं वो हमारा घर का क्वीन होते हैं. हम उसको इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, है ना? You agree this? Yes. So it is our thought of the day. Yes. In previous class, I have shown you an activity that you have to write numbers in the boxes and you should not repeat the number and you have to get 15 in every corner of the sum. You have to get 15. How you will going to do this? I hope you tried this your best, but today I will show a trick for this activity. Okay, what you have to do, simple, it is very simple. You have to draw a extra boxes here, here, here and in this side. Yes, in middle of the two boxes you have to draw extra boxes. Then what you have to do, you have to write crossword. In the crossword numbers you have to write 1, 2, 3 and leave this box and write here 4, 5, 6. Then here leave this box and here write 7, 8 and 9. Okay, so now what you have to do, this 7 should come here and this 3 should come here and then this 9 should come here and this 1 should come here. You understood, right? This 3 will come here, 7 will come here in the empty box and 9 will come here and this 1 will come here. Okay, then this all the boxes, side boxes, you have to erase it. Not like this. If you will do like this, others will easily find out how you have done the sum. So you have to erase with this. You should not show this one. Yes, in mind also you can do this, but for your reference I am
showing with the help of these boxes. Okay, just calculate this 2 plus 7 plus 6. Now calculate the sum. You have to get 15 here, 15 here, 15 this corner, 15 this corner. So calculate this. 2 plus 7 plus 6. Yes, 2 plus 6 is 8. 8 plus 7 is 15. 9 plus 1 is 10. 5 plus 5 is 15. Like this, every single corner or single line you can get 15 out of this. Yes, you understood this activity, right? Okay, I hope you enjoyed this activity. Let's discuss our syllabus. Okay, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ाई किया हुआ है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स में एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन्स, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, उसमें हम सतलेज बेसिन एंड गंगा बेसिन को एक्सप्लेन किया हुआ है. जो 3 बेसिन जो आता है, द सतलेज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. सतलेज बेसिन इन द वेस्ट साइड, Ganga basin in the center in middle, the Brahmaputra basin in the east. You can see in this picture, right? Sutlej basin in the west side, Ganga in the middle and Brahmaputra in the east side. जो ये 3 बेसिन है, बेसिन क्या होता है? द एरिया थ्रू विच दे फ्लो इज कॉल्ड अ बेसिन. जो रिवर जो है वो कैसे फ्लो होता है, वो जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं. वो प्लेन एरिया होता है. ये प्लेन एरिया को हम 3 मेन डिवीजन से कहते हैं, सतलेज बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये इम्पोर्टेंट रिवर बेसिन है. और सतलेज बेसिन को हम पंजाब बेसिन भी कहते हैं और इंडस बेसिन भी कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया में द सतलेज ट्रिब्यूटरीज है. द रिवर सतलेज एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर बीस फ्लो अक्रॉस पंजाब एंड हरियाणा. It joins the river Indus in Pakistan. That's why we call it Indus Basin also. है सतलेज बेसिन जो है ए बून टू द पीपल ऑफ पंजाब. बून मतलब क्या है? ए थिंग दैट इज हेल्पफुल और बेनिफिशियल. जो बेनिफिट होता है पंजाब के लोग के लिए, क्योंकि उधर जो अच्छा रेन नहीं आता है, इसीलिए ये रिवर को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वाटरिंग के लिए, इसीलिए जो यूज़ होता है, तो इसको हम बून कहते हैं, पंजाब का बून कहते हैं. ओके, ये एरिया में, जो पंजाब एरिया में राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया. इस एरिया में जो क्रॉप्स के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए सतलेज रिवर, बीस रिवर यूज़ होता है, इसलिए बून कहते हैं इसको. ओके, यू अंडरस्टूड अबाउट द सतलेज बेसिन, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज गंगा बेसिन. द गंगा बेसिन स्टार्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास. हिमालय से गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा रिवर आता है. ये फ्लो होता है नॉर्दर्न प्लेन एरिया में. ये गंगा रिवर में जो ट्रिब्यूटरी रिवर आता है, ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? अ स्मॉल रिवर दैट फ्लोस इनटू अ लार्जर रिवर. क्या होता है? छोटा छोटा नदियाँ जो है वो बिगर रिवर, लार्ज रिवर को ज्वाइन करते हैं, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. गंगा को ज्वाइन करने के लिए जो छोटा छोटा रिवर होता है वो कौन कौन सा है? वो है यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, चंबल, सन एंड द दामोदर रिवर्स, द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ गंगा. ओके, इन दिस एरिया में, जो गंगा बेसिन में इम्पोर्टेंट सिटीज और टाउन्स आता है अलोंग द रिवर रिवर बेसिन्स. रिवर बेसिन में जो है वो इम्पोर्टेंट टाउन्स आता है, क्योंकि इधर जो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है
वाटर अवेलेबिलिटी अच्छे है, सॉइल फर्टाइल है, रिच इन फर्टिलिटी, एंड मैनी क्रॉप्स लाइक जूट, राइस, व्हीट, शुगर केन, दिस ऑल आर ग्रोन इन दिस रीजन. दैट्स वाई पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, टाउन्स ज़्यादा है, इसलिए गंगा बेसिन एरिया है उसमें पॉपुलेशन भी ज़्यादा होता है. वो गंगा रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जॉइन होता है, बे ऑफ बंगाल ओशन में जॉइन होता है. बिफोर दैट इट फॉर्म्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा. डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जो है जो फर्टाइल सॉइल को डिपॉजिट करता है रिवर बिफोर एंटरिंग टू द सी और ओशन, उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. You understood about this too, right, in the previous class, even though I have explained in brief in this class. Okay, next one is Brahmaputra Basin. You can see Brahmaputra Basin, right? This Brahmaputra Basin rises in Tibet. Tibet में राइज होता है ब्रह्मपुत्रा, उस एरिया में जो known as the सांगपो रिवर. सो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहते हैं? सांगपो. द स्पेलिंग इज TSANGPO. इन द 20 पेज नंबर 20 यू कैन सी दिस ब्रह्मपुत्र बेसिन. ब्रह्मपुत्र बेसिन वो ओरिजिनेट होता है तिब्बत से. ओके, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिस एरिया में जो ब्रह्मपुत्र बेसिन आता है, उस पहले फ्लो कहाँ आता है? अरुणाचल प्रदेश एंड देन टू आसाम बिफोर जॉइनिंग द रिवर गंगा. उसके बाद क्या होता है? ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा रिवर में जॉइन होता है. ओके, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ब्रह्मपुत्र बेसिन नॉट ओनली इंडिया, ये चाइना से भी, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, ये सब नेशन में आता है, सब कंट्री में आता है. आप देख सकते हो रेड कलर जो है वो इंडिया है. इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ कहाँ आता है वो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, है ना. ग्रीन कलर है जो वो बांग्लादेश है, ब्लू है भूटान, येलो चाइना एंड रेड इंडिया. ओके, you understood by this how it flows, how Brahmaputra basin flows. A Brahmaputra basin है span states of Arunachal Pradesh, Assam, West Bengal, Meghalaya, Nagaland and the whole of Sikkim in India. इंडिया में जो एक पूरा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड द सिक्किम, ऐसे स्टेट में बहते हैं. और दिस बेसिन इज ऑफ इरेगुलर शेप जो है इरेगुलर शेप है. द मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट लेंथ इज 1540 किलोमीटर एंड द मैक्सिमम नॉर्थ साउथ वेथ इज 682 किलोमीटर्स आता है ब्रह्मपुत्र बेसिन. ओके, you can see in this picture your page number 20, the textbook page number 20, the Brahmaputra basin. This river rises in Tibet. Tibet में rise होता है, originate होता है, where it is known as the Sangpo. उधर जो Sangpo कह जाता है, लेकिन उसका जो स्पेलिंग है TSANGPO. Okay, correct spelling you have to write, but you have to pronounce it Sangpo. It then flows eastwards and enters India, flowing first through the state of Arunachal Pradesh. जो ब्रह्मपुत्र बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर है ईस्ट वर्ड में आता है, ईस्ट साइड में, इंडिया का ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को एंटर करता है और उसके बाद आसाम में आता है,
जो रिवर गंगा को जॉइन करता है, उसके बाद रिवर गंगा को जॉइन करता है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो होता है, वो बहते हैं थ्रू हिली एरियाज, हिल स्टेशन में, हिल एरिया में बहते हैं। उसके बाद द रॉक्स एंड देन डिपॉजिटिंग द सॉइल, एरोडिंग, जो एरोड होता है, जो उसके बाद जो होता है रॉकी एरिया में एंड देन डिपॉजिटिंग द सॉइल। उसके बाद जो फ्लड आता है, वो ज़ोर से बहते हैं नदियाँ, जो उसके साथ फ्लड भी आता है। फ्लड में सॉइल, अलुवियल सॉइल होता है, फर्टाइल सॉइल होता है, वो क्रॉप के लिए अच्छा होता है। ये सॉइल एक्सट्रीमली फर्टाइल, एक्सट्रीमली मतलब जो बहुत बहुत बढ़िया होता है, बहुत फर्टाइल होता है, एंड इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ जूट एंड राइस। इस एरिया में, ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, जूट एंड राइस जो है वो अच्छे से क्रॉप होता है। और टी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। इंडिया में टी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, जो आपको पता है आसाम में बहुत टी एस्टेट्स है। टी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। सो इंडिया में ग्रेटेस्ट फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में ही इंडिया इज़ द ग्रेटेस्ट फर्टाइल लैंड। इंडिया हैज़ द ग्रेटेस्ट फर्टाइल लैंड in the world. Okay, you understood about Brahmaputra basin, right? We completed our 3 river basins, that is the Sutlej basin, the Ganga basin and the Brahmaputra basin. Now we will move into states in the northern plains and life of people. In the नदर्न प्लेन एरिया में कौन कौन सा स्टेट्स आता है, उसमें जो लाइफ कैसा है पीपल का, जो उधर का जो जनजीवन कैसा है, कैसे वो जीवन करते हैं, वो सब हम एक एक करके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आसाम, इसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेट इज पंजाब। पंजाब में जो पंजाब नाम कैसे आया है, पंजाब जो है, पंज मतलब 5 एंड अब मतलब वाटर और रिवर, इसके लिए वो जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, 5 रिवर्स, झेलम, रवि, चेनाब, पीस एंड सतलेज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। ये सब रिवर पंजाब में बहते हैं, पंजाब में फ्लो होता है, इसलिए ये एरिया को हम पंजाब कहते हैं। एंड दिस एरिया में जो Sutlej flows in the Punjab province, and then it covers the Pakistan and India both. So a Sutlej and Beas flow in India, but the Indus flows in Pakistan. That's why we call Indus basin also. Okay. So Sutlej and Beas flow in Indian part of Punjab. Okay, now we can see in Punjab, or Indian part of Punjab, you can see Sutlej and Beas river. In this area in Punjab, agriculture is the main occupation in the state. In our state, the agriculture in the Punjab state, you can see agriculture is the main occupation. Amritsar, Ludhiana and Jalandhar are the big cities of Punjab. पंजाब में कौन कौन सा बिग सिटीज़ है? अमृतसर, लुधियाना एंड जलंधर। ये अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो गोल्डन टेम्पल, ये गोल्डन टेम्पल है, पीपल को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो पीपल गो टू अमृतसर टू विजिट द गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल को विजिट करते हैं लोग, वो अट्रैक्शन है। एंड भांगड़ा एंड गिद्दा आर पॉपुलर डांस फॉर्म्स इन पंजाब। लोहरी एंड बैसाखी आर मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर।
In Punjab, we can see Lohri and Baisakhi festivals. Makki ki roti, sarson ka saag and lassi are main food items of Punjab. ये एक्स्ट्रा नॉलेज है पंजाब के बारे में. ओके, यू अंडरस्टूड अबाउट पंजाब एंड देयर लाइफस्टाइल. दिस एरिया में जो आपको पता है पंजाब में क्रॉप्स कौन कौन सा है. पहले जो सतलेज बेसिन में हम पढ़े हुए हैं कि वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन विथ सतलेज बेसिन. ओके, सो वी विल मूव टू नेक्स्ट स्टेट दैट इज हरियाणा. हरियाणा में जो है वो साउथ ऑफ पंजाब हरियाणा है. हरियाणा लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ पंजाब, जो पंजाब के साथ ही आता है द साउथ में. फार्मिंग बहुत अच्छा है. कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस हियर. इन हरियाणा में कौन कौन सा ऑक्यूपेशन आता है? फार्मिंग, कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग. अंबाला, हिसार, पानीपत, फरीदाबाद एंड गुरुग्राम आर द बिग सिटीज ऑफ हरियाणा. हरियाणा में कौन कौन सा सिटीज़ है? मेन सिटीज़ अंबाला, हिसार, पानीपत, फरीदाबाद एंड गुरुग्राम. एंड गुरुग्राम इज़ द हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गुरुग्राम अच्छा है. और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ भी इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कार ऑटोमोबाइल्स कहते हैं ना, वो कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है. चंडीगढ़ इज़ द कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. बोथ हरियाणा एंड पंजाब में जो चंडीगढ़ इज़ the common capital and the union territory also Chandigarh. It is a well planned modern city of India. ये जो चंडीगढ़ है मॉडर्न सिटी है, वेल प्लान्ड मॉडर्न सिटी है. इसमें वीट, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस, बार्ली, मिलेट्स, कॉटन, माइज एंड शुगर केन आर ग्रोन इन द एरिया ऑफ हरियाणा. हरियाणा में कौन कौन सा क्रॉप्स आता है? वीट, राइस, ऑयल सीड्स, पल्सेस, बार्ली, मिलेट्स, कॉटन, माइज एंड शुगर केन. Okay, a rock garden is in Chandigarh city. So you can see in this picture rock garden. इसमें स्कल्पचर है जो रॉक से बनाया हुआ है, पूरा रॉक से बनाया हुआ है. आपको मौका मिला तो आप जाके देख सकते हो. और ये भी और अमृतसर भी अच्छा visit. You can visit these places. Okay, so in the next class we will discuss about next few states of our India, that is includes northern plain areas. Okay, that is Uttar Pradesh, Bihar, Delhi, West Bengal, Assam. ये सब important states covers the northern plain area. Okay, till then, bye, take care.